Hey people out there, we should understand the meaning of the pleiotropy by breaking the word. I hope you will enjoy this video, give your love to this video. Let us move towards the pleiotropy meaning. Pleon means more or many. Tropos means ways or characters. जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर शो करता है हम उसे प्लियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं. चलो एक बेसिक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसके लिए. Without being analytical, we need to understand pleiotropy in a very simple language. For example, we all have milk at our homes, basic need, and this milk is used in making very different products such as curd, such as buttermilk, paneer, ghee, yogurts, etc. So, for example, if we talk about this example in a genetic language, means एक जीन जब बहुत सारे इफेक्ट शो करेगा, एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, तब हम क्या बोलेंगे उसे? तब हम बोलेंगे उसे प्लियोट्रोपी, अ जीन विच शोज मोर देन वन कैरेक्टर. So are we ready for the detailed study of the Mendelian exceptions? One of the example is pleiotropy. You know very well the simple meaning, but now we are going into the detail of the pleiotropy example. प्लियोट्रोपी में मैंने एक एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार्च ग्रेन्स के बारे में. बट यहाँ पर हम सिर्फ स्टार्च ग्रेन को ही नहीं कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सीड की शेप को भी. स्टार्च ग्रेन्स के साइज को कंसिडर करना है, सीड्स के शेप को कंसिडर करना है. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डिटेल्ड स्टडी, आई एम गोना टेल यू वन वर्ड, दैट इज ब्लेंडिंग. अभी ब्लेंडिंग का मतलब आपको यहाँ पर हो सकता है ना भी समझ में आए, मैं आपको अभी लास्ट में इसका मीनिंग बताऊंगी. बट यू नीड टू फोकस ऑन दिस वर्ड बिकॉज दिस वर्ड कैन कम इन योर एग्जाम, कैन कम इन योर एनी ऑप्शन ऑफ द MCQ. नाउ सी हियर, I have drawn three types of starch grains. You can see the large one, the intermediate one, and the small one. And the seed shape: round seed, wrinkled seed. But what is the difference here? Why are we focusing on these two traits, and why are we focusing here on blending? See here, the twist is in the intermediate starch grain as well as round seed. इन दोनों पर फोकस करते हुए हमें अब ट्विस्ट समझ में आएगा. बट बिफोर दैट, let me tell you, starch is a polysaccharide. You know very well starch is a polysaccharide, means it is a complex carbohydrate. Saccharide word stands for carb. तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ये इनके जीनोटाइप्स हैं. तो दिस वन इज डोमिनेटिंग कैपिटल बी. This should be dominating according to Mendel, but I have written here intermediate. Yeah, we'll come on this. And then is small b recessive character. Now see here, if I see seed shape, this is round के लिए capital B, then capital B, small b किसके लिए है? Round के लिए ही है. Then small b wrinkled के लिए है. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो हमने डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही लिख लिया है, बट यहाँ क्यों चेंज आया? लेट अस सी. देखिए क्या हुआ, यहाँ पर दो पेरेंट्स लिए गए. एक पेरेंट था यहाँ पर कैपिटल बी. लेट अस कंसिडर दिस एज फीमेल पेरेंट. अगर मैं इसे फीमेल पेरेंट बोल रही हूँ और इसे मैं मेल पेरेंट बोल रही हूँ, तो यहाँ पर ये जो फीमेल पेरेंट है इसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक तो लार्ज स्टार्च ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है, एक राउंड सीड की भी कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ नेक्स्ट मेल जो है यहाँ पर, मेल क्या है यहाँ पर? रिसेसिव है. रिसेसिव का मतलब स्टार्च ग्रेन क्या होना चाहिए था? स्मॉल साइज, and the seed shape is wrinkled. Yes, very good. Now gametes will form at the reproductive maturity. When gametes were formed, then they crossed. अब क्रॉसिंग जब हुई तो हमें जो रिजल्ट मिला वो था कैपिटल बी, स्मॉल बी. Now you can see here, if I consider first trait, that is starch grain size, then starch grain size is what? Intermediate. You can correlate this one and this one. But if I see the seed shape, then what is the main reference? Yes, main preference is this one, round. यहाँ पर round seed है.
तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि एक ट्रेट यहाँ पर डिफर कर रही है, बट एक अकॉर्डिंग टू मेंडल ही चल रहा है। मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्च ग्रेन क्या होना चाहिए था, लार्ज होना चाहिए था, कंप्लीट डोमिनेंस दिखानी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज नहीं है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स हैं। तो इसका मतलब कैरेक्टर यहाँ पर ब्लेंड हुआ है, मिक्स हुआ है, सीड शेप का केस नहीं, स्टार्च ग्रेन का। तो यहाँ पर इसलिए वर्ड क्या यूज हो जाएगा, ब्लेंडिंग यूज हो जाएगी। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते, तो हमने तो सिर्फ F2 जनरेशन ही निकालनी थी। तो देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, मोनोहाइब्रिड वाला तरीका अपनाओ, सेल्फिंग कराओ किसकी, F1 जनरेशन की। दिस इज वन पेरेंट, दिस इज अनदर पेरेंट। नाउ for F2 generation we need to make one Punnett square. We have drawn this. यहाँ पर हम लोगों ने gametes लिख दिए हैं. Now we have got these results. You can see we have got 3 different types of progenies. First type of progeny, this one, and then these are some second type of progeny, and this is third type of progeny. अब इनको हम लोग यहाँ पर देख के we can easily find out phenotypic and genotypic ratio. You can see here this is only 1. I have written 1 only. This is 2. यहाँ पर देखो ये 2 हैं, 2 लिख दिए हैं, and then this is 1. 1 to 1 जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1 to 1. Yes, फिनोटाइप में देखो राउंड सीड लार्ज ग्रेन 1, then राउंड सीड इंटरमीडिएट ग्रेन 2, यहाँ पर दिखा रहा है सेकेंड थर्ड क्या है, यहाँ पर wrinkled seed and small grains 1 लिख दिया है यहाँ पर। तो phenotypic and genotypic ratios are same in pleiotropy. This is the exception of Mendelian principle. फिनाइलकेटोनूरिया एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि प्लियोट्रॉपी ही शो करता है। कैसे, देखो फिनाइल एलेनिन एक टाइप का अमाइनो एसिड है जो कि कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, विच इज ऑल्सो एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यू कैन से द एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाती है, हमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं हो पा रहा है। बट अगर मान लो इस एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, यही जो है ये ट्विस्ट लाता है, यही यहाँ का हीरो है, यही यहाँ का विलन है, इसने यही काम करना है, क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को अगर इसने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया तो फिनाइल एलेनिन को एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, कहाँ पर, हमारी बॉडी के अंदर। Bad effects of phenylketonuria are bad odor from the body such as stinky odor, you can say mental retardation, जिसकी वजह से ब्रेन जो होता है वो बहुत तेज़ी से नहीं काम करता है, हम इसे साइकोसिस भी बोलते हैं, हम इसे कॉग्निटिव रिटार्डेशन भी बोलते हैं। कॉग्निटिव वर्ड ब्रेन से रिलेटेड होता है। पिगमेंटेशन लाइट हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं बॉडी। I'm giving you some insight of this example, that is we have our red blood cells, in that we have hemoglobin part, in that we have globin chains. globin chains में जो बीटा पार्ट होता है, globin chain में जो बीटा पार्ट होता है वहाँ कुछ म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से हम सिकल सेल एनीमिया को फेस करते हैं। वहाँ पर उस जीन में यानी कि ग्लोबिन जीन में अगर जब प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लाइंडनेस, लिवर फेलियर, हार्ट अटैक, मसल्स वीकनिंग, इस तरीके। Have you ever heard of Drosophila? Okay, let me tell you, Drosophila is known as Cinderella of genetics. Why? Because it is a very very important experimental material of laboratories discovered by T.H. Morgan. Arthropod है, इसके ऊपर जितना भी काम हुआ था एक्चुअली उसकी डिस्कवरी T.H. Morgan ने दी थी। क्या पता किया था, जो नॉर्मल Drosophila की जो आईज होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, पर मेल्स के अंदर उन्होंने पता किया कि वाइट आईज की भी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक डीपिगमेंटेशन, वीकनिंग of light muscles, etc. I hope you have enjoyed the video. If you like it, then please hit the like button, share, comment and subscribe. Please